A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue our literature portion and we are going to start the lesson number 9, Madam Rides the Bus. In this very lesson we will come to know and we will read out the story of a small girl, and she was just a few years old, approximately 8-year-old, and she took her first bus journey into the world outside, and her village is also her induction into the mysteries of life and death. So she wants to see all this gap between our knowing that there is death and our understanding of it. So if this is a sensitive story, and we will come to know this very interesting story throughout the lesson. Now, before starting this very lesson, let us know who is the writer of this very short story, that is Valli Kannan. Okay, now who is the writer is Valli Kannan, and you will find out some of the familiar name regarding the main character of this very lesson, that is Madam Rides the Bus. Before you read, we come to know that in this sensitive story, an 8 years old girl's first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. So here we come to know that there is the story of the 8 years old girl, and she was just move outside of her village just to see what can be instead of all these things which she is you can say used to saw around her, because she wants to also induct all these mysteries of life and death. She sees the gap between our knowing that there is death and our understanding of it. Now she is too you can say small, or the few years old girl, that she did not understand before this journey the concept of death, but after this she come to know and come to understood the real journey of life. So here we have the plot, we can say, discuss within the 3-4 lines. After that we come to know about the activities of this very lesson, that is, first look at the words and phrases given below, then put a tick against the ones you think you will found in the text. So you have to read out all these phrases, and you have to put a stick when you will find the real meaning of the theme, you can say, these phrases in your text. And the second activity is that you must have traveled by bus more than once. Yes, what can you see from a fast moving bus? Given below are some suggestions, speaking briefly about some of these scenes or about other scenes that have you सीन और राइट अ सेंटेंस और टू अबाउट दैट. इट मीन्स आपको जो यहाँ इस बॉक्स में, ब्लू लाइन बॉक्स में आपको जो वर्ड्स दिए गए हैं, आपको उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफली बोलना है. यू हैव टू स्पीक ब्रीफली ओवर देयर, and you have to do one more thing, that you have to write a sentence or two or more about these. For example, rivers are there. Whenever you see the scenery of the river, what kind of pictures come into your mind? For example, you are feeling relaxed, feel peace, feeling so happy. So you have to speak out some briefly about these things. Okay, now let us start this very lesson. But before starting this very lesson, I really want to confirm you that how this very girl, whose name is Vallamai, or the Valli, right, in the short we can say. So this very girl named Vallamai, who is just only 8 years old, was very curious about the things. So she will start her journey, and she will end up the journey with the theme that she will get, and with the theme which the whole lesson is revolves around, that is particularly you can say the concept of death and life, the circle of life and death, that everyone have to know. So this is the very theme of this very lesson. Now let's get started with the first of the paragraph. There was a girl named Vallamai who was called Valli for the short. For example, we have just taken by our name. For example, if someone will call you by your nickname, that is the same thing here, that is Valli, that is a nickname of that 8-year-old girl Vallamai. She was 8-year-old and was very curious about things. It means she was so curious to know each and everything about the outside world. Her favorite pastime was standing in front doorway of her house. So what is the favorite pastime? Pastime is the time whenever you
विच यू स्पेंड इन टू पास्ट योर स्पेंडिंग टाइम. इट मीन्स यू आपके पास स्पेयर टाइम होता है तो आप उसको टाइम पास करना चाहते हो, देन इट इज़ अ पास टाइम. पास टाइम इज द वर्ड. सो वॉज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ, तो उसका सबसे फेवरेट चीज़ क्या थी, वो जो टाइम को पास करने के लिए यूज़ करती थी, दैट इज़ वो अपने डोरवे यानी दरवाजे पे खड़े हो जाती थी अपने घर के सामने ही खड़ी हो जाती थी. सो वॉचिंग व्हाट वाज हैपनिंग इन द स्ट्रीट आउटसाइड, वो अपने गली में जो भी कुछ हैपनिंग हो रही होती उसको देखा करती थी. देयर वाज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, उसके गली में उसके एज के कोई भी प्लेमेट्स नहीं था. एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, बस यही काम वो करती थी. फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, देखिए वो किस तरीके से अपने डोरवे पे खड़ी, एंड शी यूज टू सी आउटसाइड. एंड दिस इज हैपन बिकॉज देर इज़ नो यू कैन से एज्ड playmates of her in her street. But for Wally, standing at the front door was every bit as enjoyable as any elaborate games other children play. सो वली के लिए वो इतना ही इम्पोर्टेंट होता था डोर पे खड़ा होना जितना लोग अपने गेम्स में और बच्चे अपने खेल में इंजॉय करते हैं. तो वॉचिंग द स्ट्रीट गिव हर मैनी न्यू यूजुअल एक्सपीरियंस. तो जो वो अपने गली को देखती थी, गली में होने वाली एक्टिविटीज़ को देखती थी, तो उसके लिए वो एक अनयूजुअल नया एक्सपीरियंस हुआ करता था. राइट. सो हियर द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग of all was the bus that traveled between her village and the nearest town. सबसे अच्छा फैसिनेटिंग जो उसको मंत्रमुग्ध कर लेता था, जो दृश्य बाहर वो देखती थी, वो सबसे ज़्यादा अच्छा ये था कि वो बस जो उसके गांव से और नियरेस्ट टाउन में के बीच चलती थी, यानी कि उसको जो बस आती जाती हुई दिखाई देती थी वो उसके ज़्यादा पसंद करती थी, उससे ज़्यादा फैसिनेटिंग होती थी. फैसिनेटिंग मीन्स टू अट्रैक्ट होती थी. सो इट पास थ्रू हर स्ट्रीट्स ईच आवर, वो उसकी हर घंटे उसकी गली में से गुजरती थी. वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक, एक बार वो टाउन की तरफ जाती तो कभी टाउन से आती थी. द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर. हमेशा यही दृश्य रहता था कि हमेशा जो भर कर लेकर जाती थी वो वहाँ उतार देती थी पैसेंजर्स को, और बस में हमेशा नए पैसेंजर्स भरकर आते थे. वही सोर्स ऑफ एन एंडिंग जॉय फॉर वली. वली उस बस में उन पैसेंजर्स को देखकर और बस को देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती थी. वो एक अनहीन जॉय का सोर्स था उसके लिए. डे आफ्टर डे शी वॉच द बस. अब वो दिन पर दिन हमेशा डेली बस को देखती रहती. एंड ग्रेजुअली टिनी विश क्रेप्ट इनटू हर हार्ट एंड ग्रू देयर. अब वो उसके दिमाग में एक विश चलती है कि मुझे भी इस बस में सवारी करनी है. शी वॉन्ट्स टू राइड अ बस. शी वांटेड टू राइड ऑन दैट बस इवन इफ़ जस्ट वंस, चाहे वो एक बार ही करे लेकिन वो करे, सवारी करना चाहती है बस की. दिस विश बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर अंटिल इट वॉज एन ओवरवेलमिंग डिज़ायर. अब ये विश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती गई और एंडिंग में ये एक ऐसे डिज़ायर होगी जिसे वो किसी भी कीमत पे पूरा करना चाहती है. Wally would stare wistfully at the people who got on and off the bus when it stopped at the street corner. Wistfully means अपने विश से, यानी इच्छा से, काफ़ी मतलब जो हम किसी से इच्छा करते हुए नज़र करते हैं ना, उस तरीके से देखने लगी वो. ना वो अपने विश यू कैन से जब वो दूसरों में अपनी इच्छा को ढूंढ रही थी वी कैन से, क्योंकि लोग आ रहे थे उतर रहे थे, वो उनमें से अपनी चीज़ों को सोर्स ऑफ यू कैन से एक हैप्पीनेस मान रही थी. सो यहाँ हम देखते हैं कि वो वली जो है वो घूरने लगी लोगों को जो उस बस में से आते थे उतरते थे, जो कि स्ट्रीट कॉर्नर पे उतरते थे. तो मतलब यानी कि वो ऑब्जर्व कर रही थी. यहाँ घूरना मतलब उनको टकटकी लगाकर देखना नहीं, यहाँ पे ऑब्जर्व करना है. देयर फेसेस वर किंडल इन हर लॉन्गिंग्स. किंडल इज़ अ काइंड ऑफ सैटेलाइट. इट मीन्स अ काइंड ऑफ फीलिंग, राइट. सो हियर जो उनके फेसेस थे वो काफ़ी इन हर लॉन्गिंग्स, जो उनके फेसेस देखकर वो अपनी उनकी इच्छा जो है वो एक आग का रूप ले लेती थी, एक फीलिंग का रूप ले लेती थी. ड्रीम्स एंड होप्स, जो उसकी बहुत सारे ड्रीम्स थे, होप्स थे, उनके फेसेस देखकर वो काफ़ी और भी जागृत हो जाते थे. इफ़ वन ऑफ द हर फ्रेंड हैपेंड टू राइड टू द बस and try to rescue the sight of the town to her, Wally would be too jealous to listen and was shout in English, proud, proud. Neither she nor her friend really understood the meaning of the word, but they used it often as a slang expressions of a disapproval. इट मीन्स यहाँ हमें पता चलता है कि उसके जो दोस्त थे, फ्रेंड्स थे, अगर वो कभी भी बस राइड करके आते तो वो उसे बताते कि बस राइड कैसे होती है. उसको सारी साइड से जो उसको रास्ते में दिखाई दी टाउन जाते हुए
वो सीनरी जो वो डिस्क्राइब करते थे उसके सामने, बट वली हमेशा एक बात कहती थी इंग्लिश में, प्राउड एंड प्राउड, राइट। अब उनका मतलब तो उनको समझ नहीं आया कि प्राउड प्राउड यहाँ क्या है, बट वो उस चीज़ को एक स्लैंग के तौर पर लेके चलते हैं। इट मीन्स एक इनफॉर्मल वर्ड्स जो कि सिर्फ क्लोज ग्रुप में ही बोली जाती है, राइट। जैसे कोई ग्रुप है, मेरा है, कोई फ्रेंड्स है, तो हम उसमें कुछ भी बोल सकते हैं, तो वो हमारी कॉमन लैंग्वेज हो जाती है, कॉमन वर्ड्स हो जाता है, कुछ इनफॉर्मल वर्ड्स हो जाते हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं। तो बेटा यहाँ पे उसके एक्सप्रेशन से जब वो प्राउड प्राउड कहती थी तो लोगों को लगता था, यानी फ्रेंड्स को लगता था कि वो डिसअप्रूव कर रही है इन चीज़ों को। Over many days and months, Wally listened carefully to conversation between her neighbors and people who regularly use the bus. अब कुछ दिनों पहले और कुछ महीनों तक उसने वली ने यानी वली काफ़ी क्यूरियस थी जाने के लिए, राइट। तो वो उसके बारे में गैदर कर रही थी इन्फॉर्मेशन। तो वो अपने आसपास में जितने भी लोग बस में जाते थे रेगुलरली उनकी बातों को सुनती, वही कन्वर्सेशन को सुनती। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड ए फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर, और कई बार तो वो यहाँ से वहाँ कुछ केयरफुली कुछ क्वेश्चन पूछ लेती थी उनसे, क्योंकि उसकी क्यूरियोसिटी इतनी ज़्यादा थी। दिस वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स। नाउ ओवर मैनी डेज एंड वो अपने कई महीनों से अपनी जो ऑब्जर्वेशन है, लोगों से बातचीत है, वो सुन रही है, उनसे क्वेश्चन कर रही है। द वे शी पिक्ड अप वेरी स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी, उसने एक छोटी से छोटी स्मॉल डिटेल्स जो है वो पिक आउट कर ली हैं, यानी कि उससे जानकारी जुटा ली है। द टाउन वॉज 60 मील्स, उसको पता लग गया है कि उनके गांव से जो टाउन है वो 6 यानी 6 मील की दूरी पे है। द फेयर वॉज 30 पैसे वन वे, एक तरफ के जाने के उसके 30 पैसे हैं, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल, जो कुछ भी नहीं थे। शी हर्ड वन वेल ड्रेस्ड मैन से, वो ये बात कहते हुए किसी आदमी को सुनती है जो काफ़ी अच्छे कपड़े पहने हुए था, कि ये तो कुछ भी किराया नहीं है। बट वली हु स्कैर्सली सो, जिसने बहुत मुश्किल से ही पैसे देखे हैं, दैट मच मनी फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट, तो ये बहुत ज़्यादा मनी है क्योंकि उसने कभी भी इतने पैसे देखे भी नहीं हैं। इट सीम्स ए फॉर्चून, ये तो उसके भाग्य में होगा अगर उसे पैसा मिल जाएगा तो। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, इट में 45 मिनट्स की जर्नी है। टाइम कितना पीरियड है उनके विलेज से टाउन तक का? 45। ऑन रीचिंग टाउन, इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे, शी कुड रिटर्न ऑन द सेम बस। अब उसे पता चल गया कि उसे अपने सीट पे से नहीं उतरना है, और जब वो टाउन पहुंच जाएगी तो उसे 30 पैसे वहाँ देने हैं, और अगर वो वापस आना चाहती है तो उसी बस में, तो उसे वैसे ही पैसे वापस देने पड़ेंगे, 35 पैसे देयर। सो दिस मीन दैट शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस। तो उसने देखा कि वो 1 बजे की बस जो शाम दोपहर को वो ले सकती है। रीच द टाउन एट द 1:45, और वो टाउन में पहुंच जाएगी 1:45 पे, एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45, और वापस भी वो आ जाएगी 2:45 तक, राइट। ऑन एंड ऑन वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड रीकैलकुलेटेड, प्लान्ड एंड रीप्लान, यानी कि वो इतनी ज़्यादा क्यूरियस थी कि वो इतना सारा कैलकुलेशन करके बैठी है, मुझे ऐसे जाना है, इतने पैसे देने हैं, वापस आना तो इतने पैसे देने हैं, और इतना टाइम लग जाएगा। सो ये सारे प्लान जो है वो करती रही है। सो आफ्टर दैट वी कम टू नो सम ऑफ द क्वेश्चंस जिनका हमें आगे आंसर मिलेगा। यहाँ पहला क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट वाज वलीज फेवरेट पास टाइम। हम इसके बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। इसका फेवरेट पास टाइम क्या है? टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द डोर वे ऑफ हर हाउस। सेकंड क्वेश्चन इज सेज व्हाट वाज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर द वली। दैट इज टू see the bus passing away from her street. What was her strongest desire? Her strongest desire is to ride the bus. Third, what did Wali find out about the bus journey? She find out everything. She found each and everything about the things. So how did she find out these details? What do you think? And how actually she observed from the past 2 or 3 months, so she found all these details. Fourth answer is that what do you think Wali was planned to do? So she planned to visit the town, and she wants to do one more thing, that she wants to enjoy each and every side of the thing, right? So here's the second part of this lesson. I guess it started, and the first paragraph says, well, one fine spring this afternoon, यानी कि हम यहाँ तक जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ तक पता चलता है कि वली अभी तक हमें
बता रही है कि उसने क्या क्या ऑब्जर्व किया, क्या क्या प्लान किया, क्या क्या कैलकुलेशन की। बट अब सेकंड पार्ट में अब एक स्प्रिंग डे है जिसमें एक दोपहर का समय है। बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज, बस विलेज को बस छोड़ने ही वाली, यानी कि वो खड़ी है वहाँ पे, वहाँ से सवारी भरेगी और वहाँ से निकल चलेगी। बस वो उसी तैयारी में एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन ए स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस, स्टॉप द बस, एंड ए टिनी हैंड वॉज रेज्ड कमांडिंगली। अब जैसे ही एक यू कैन से जैसे वो बस चलने वाली होती है, पीछे से एक आवाज़ आती है, बस को रोको, बस को रोको, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। अब वो ये आवाज़ किसकी होती है? वली की। एंड शी वॉज जस्ट कमांडिंगली सेज कि बस को रोको, मुझे भी जाना, राइट। तो आज उसने अपने कैलकुलेशन प्लान को सब कुछ कर ही लिया है, पक्का कर लिया, अब वो जा रही है। दस बस slowed down to a crawl and the conductor sticking his head out of the door said hurry then tell whoever it is to come quickly। the bus slow down, वो बस उसके रुक कहने से वो बस जो है वो स्लो डाउन हो गई है। क्रॉल मीन्स रिंग तरीके से हो गई है, लेकिन यानी कि बहुत आराम से चल रही है। तो कंडक्टर उससे कहता है जल्दी से जल्दी करो, जल्दी आओ। इट्स मी शॉर्टेड वली, वो कह रहा था कि कोई भी हो तो जल्दी करो। तो वो कहती है इट्स मी, वो मैं हूँ, वली हूँ। आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, मुझे ही है जो बस में चढ़ना है। बाई नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप नाउ, अब बस जो है वो रुक जाती है, स्टॉप पे रुक जाती है। एंड द बस कंडक्टर सेज ओ रियली यू डोंट से सो, ओह तो तुमने ऐसा नहीं कहा कि तुम्हें जाना है? उसने कहा येस आई एम सिंपली हैव टू गो, मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मुझे टाउन जाना है। सैड वली कहती है स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, अभी वो घर बस से बाहर खड़ी है। एंड हियर इज़ माई मनी, वो कहता है कि ये मेरे मनी है। शी शॉव्ड हिम सम कॉइन्स, वो उसको कॉइन दिखाती है। तो कंडक्टर नाउ वो कहती है कि मैं वली हूँ, मैं आपके यहाँ पैसे लेकर आई हूँ, तो आप मुझे बस तक पहुँचा दीजिए। येस आई सिंपली हैव टू गो डाउन, वो कहता है मुझे टाउन जाना है। तो वो कहता है उसे कि चलो जल्दी चलो, अंदर बैठ जाओ। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट ऑन द बस, लेकिन तुम्हें पैसे देने से पहले बस में जाना पड़ेगा। कंडक्टर कहता है कि तुम्हें पहले पैसे देने से पहले बस में भी चढ़ना होगा। ही स्ट्रेच आउट द हैंड हेल्प हर अप, वो उसका हाथ पकड़ के उसको ऊपर खींच लेता है ताकि उसकी हेल्प हो जाए और वो बस में चढ़ जाए। नेवर माइंड शी सेड आई कैन गेट ऑन बाई माई सेल्फ, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, वो कहते हैं कोई दिक्कत नहीं, मैं खुद चढ़ जाऊँगी, मुझे कोई हेल्प की ज़रूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज जॉली शॉर्ट, वो उसको थोड़ा सा मजाक में ले जाता, फॉन्ड ऑफ जॉकिंग। ओ प्लीज़ डो नॉट बी एग्री विद मी माई फाइन मैडम, तो वो यहाँ पे मैडम बोलता है उसको कि ओके जैसा आप गुस्सा ना हो मैडम, आप चढ़ें, अच्छा ही बात है। ही सेड हियर हैव ए सीट राइट अप देयर इन फ्रंट, वहाँ सामने एक बस सीट है, आप वहाँ बैठ जाइए। तो एवरीबडी मूव्स साइड प्लीज़ मेक वे फॉर मैडम, तो अब वो बहुत ही जॉकिंग वे में कहता है सभी से दूर हट जाइए, मैडम आ रही हैं, तो ये बैठ जाएंगी, आप सभी दूर हो जाइए। इट वॉज द स्लैक ऑफ द टाइम मीन्स ए टाइम व्हेन देयर इज़ नॉट मच वर्क, यानी कि आराम करने का है। एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर ऑन द बस, 6-7 बस ही पैसेंजर थे। दे वर ऑल लुकिंग एट वैली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, जब कंडक्टर ये बात कहता है कि मैडम को रास्ता दो, तो इस बात पे सभी हंसते हैं। वली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, अब वो थोड़ा सा शाई फील करती है। अवॉइडिंग एवरीवन्स आई, अब वो थोड़ा सा मतलब सभी को अवॉइड करती है जो उसकी तरफ देखकर हंस रहे थे। शी वॉक क्विकली टू एम्प्टी सीट एंड डाउन, क्योंकि वो बच्ची है, उसे नहीं पता कि भाई इस चीज़ का क्या मतलब है, वो क्या कर रही है, तो वो सिर्फ अपना ऑनेस्टली चलती जा रही है क्विकली, और जहाँ भी खाली सीट बची बैठी कैन से दिखती है उसे, वो वहाँ बैठ जाती है। ना जैसे ये कंडक्टर जो है वो उसको समझा रहा होता है ना। अब पूरी रास्ते में वो उसको मैडम मैडम बोलता हुआ जाएगा। अब वो मैडम मैडम क्यों बोल रहा है ना, जस्ट सी दिस, क्योंकि वो उसको एकदम से झटक के बोलती है कि मुझे हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आई कैन डू इट माई सेल्फ नाउ। अब वो उससे परमिशन पूछता है जोकिंग वे में कि मे वी स्टार्ट नाउ मैडम, क्या हम मैडम चलें अब अपने बस को लेकर? कंडक्टर आज स्माइलिंग, वो उसकी तरफ देखकर करता है, स्माइल करता है। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस एंड द बस मूव्ड फॉरवर्ड विद ए रोर, अब वो विसल करता है और बस चल पड़ती है। इट वॉज ए न्यू बस, नई बस थी। द आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट विद ग्रीन स्ट्रिप्ड अलोंग द साइड्स इन
अब वो एक न्यू बस है, तो बाहर से वो पेंट हो रखी है, जिसमें एक ग्लीमिंग यानी चमकने वाले वाइट कलर से के ऊपर ग्रीन कलर की स्ट्रिप्स की जो साइड है वो छाप रखी हैं। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर। अब जो बार्स है ओवरहेड यानी कि आपको दिखाई देते हैं कई बार बस के ऊपर, तो वो बिल्कुल एक सिल्वर की तरह दिखाई देते हैं। यानी न्यूली बस है। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वैली अबाउ द विंडशील्ड देयर वॉज अ ब्यूटीफुल क्लॉक। अब बिल्कुल ही खिड़की के ऊपर एक ब्यूटीफुल क्लॉक भी है उस बस में। द सीट वॉज सॉफ्ट एंड लग्जीरियस। अब जो वली है वो हमें बताती है कि वो जहाँ बैठी हुई है वो एरिया कैसा है, वो काफ़ी अच्छा है, लग्जीरियस सा लग रहा है। वहाँ एक ब्यूटीफुल क्लॉक है, बिल्कुल विंडशील्ड अच्छे से है, यानी कि काफ़ी उसको अच्छा लग रहा है, वो उसके बारे में हमें जानकारी दे रही है। So in this video we are going to do till this paragraph. After this we will continue with this very paragraph where he says Wally devoured everything. It means वो उसकी आंखों में हर एक चीज़ बहुत खुशी प्रदान कर रही थी. But when she started to look outside, then we will start in the next video with from this very paragraph. Till then, take reading out of the half of this very video and your lesson. We'll meet in the next video. Thank you so much. If you feel any kind of doubt, you can ask me at any time. Thank you.